رات کے 3 بجے ہیں، آپ گہری نیند میں ہیں اور اچانک آپ کا فون بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں بریکنگ نیوز، خلیج فارس میں فوجی کشیدگی، اب ہرمز بند ہونے کا خطرہ، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ اب سوچیں اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ اسٹاک مارکیٹ گرے گی، پیٹرول پمپ پر لائنیں لگ جائیں اور ہر چینل پر ایک ہی سوال کہ ایران اور امریکہ کی جنگ دوبارہ سے شروع ہو۔ اتنے میں آپ شاک ہو جاتے ہیں اور اپنے دماغ کے اندر جو پولیٹیکلی وہ تمام چیزیں سوچنے لگتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھی تھی کہ کیا امریکہ اور ایران کی یہ جنگ کئی گھنٹوں چلے گی، کئی دن چلے گی، کئی مہینے چلے گی یا پھر کئی سال چلے گی؟ لیکن دوستو، اصل سوال یہ نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر دنیا کی سب سے طاقتور فوج مشرق وسطیٰ کی سب سے پیچیدہ طاقت سے ٹکرا جائے تو جیتے گا کون؟ اور دوستو، یہاں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر امریکہ اتنا مضبوط ہے تو پھر دہائیوں تک وہ ایران کے ساتھ کیوں نہیں ٹکرایا؟ اور اگر ایران اتنا مضبوط ہے تو پھر اس کی معیشت اور کرنسی کمزور کیوں ہے؟ کچھ لوگ آج بھی ایرانی ریال خرید کر جمع کر رہے ہیں۔ کیا وہ یہ راز جانتے ہیں؟ اور ایک ایسا سوال جو شاید سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس سے بھی خطرناک ہے یہ کہ اگر امریکہ اس جنگ میں پھنس جائے یا پھر یہ جنگ لمبی ہو جائے اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہ ملے تو پھر کیا یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ امریکہ پھر وہی قدم لینے کے اوپر مجبور ہو جائے گا جو 1945 کے بعد آج تک نہیں لیا گیا، جوہری ہتھیار؟ اگر ایسا ہوا تو کیا صرف ایران چلے گا یا اس کا سایہ پاکستان، اسرائیل اور پوری دنیا تک پہنچے گا؟ آج ہم یہ سب کچھ سمجھیں گے، جذبات سے نہیں، حقائق سے نہیں، تاریخ سے، جغرافیہ سے اور فوجی حکمت عملی سے، مگر اب سے نہیں، 200 سال پہلے سے۔ سیدھی سی بات ہے، امریکہ کا دفاعی بجٹ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے مجموعی بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے پاس دنیا کی طاقتور ترین بحریہ ہے، ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور دنیا بھر میں فوجی اڈے ہیں۔ تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے بار بار کیوں سوچتا ہے؟ دیکھیں، کسی ملک پر حملہ کرنا آسان ہے، اصل مشکل یہ ہے کہ اس جنگ کو ایک ایسے انجام تک پہنچانا جو آپ کے مطلوبہ نتائج پر ختم۔ اسی سوال نے امریکہ کو 20 سال افغانستان میں الجھائے رکھا اور عراق میں بھی اسی سوال الجھائے رکھا۔ لیکن یاد رکھیے، ایران نہ ہی تو افغانستان ہے اور نہ ہی یہ عراق ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی طاقت صرف اس کی فوج میں نہیں، اس کی تاریخ، اس کے جغرافیے اور اس کی کئی دہائیوں کی دفاعی سوچ میں چھپی۔ اور اسی لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 200 سال پہلے ماضی میں جانا پڑے۔ جب بھی ایران کا نام آتا ہے اکثر لوگ صرف ایک جدید اسلامی ریاست کا تصور کرتے ہیں، لیکن ایران دراصل دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کا وارث ہے۔ وہی سرزمین جسے صدیوں تک فارس کہا جاتا ہے، یہ وہی زمین ہے جہاں سے کئی سو سال کا ایک ایسی سلطنت جس کی سرحدیں بر صغیر کے قریب سے لے کر بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی تاریخی ورثے نے ایرانی معاشرے میں یہ احساس پیدا کیا کہ وہ صرف ایک عام ریاست نہیں، ایک تاریخی قوم۔ اب چلتے ہیں 19ویں صدی۔ اس وقت شمال میں روس جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا اور برطانیہ کو ڈر تھا کہ اگر روس گرم پانی تک پہنچ گیا تو ہندوستان میں اس کی طاقت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یوں شروع ہوا ایک خاموش مقابلہ اور اس نے جنم دیا ایک فریز کو، The Great Game، جس میں بندوقوں سے زیادہ سفارتکاری، خفیہ ایجنسیاں اور دباؤ استعمال، اور اس کھیل کا مرکز بنا ایران۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی عوام کے دلوں میں یہ احساس جڑ پکڑنے لگا کہ بڑی طاقتیں ان کے ملک کو ایک خود مختار قوم نہیں بلکہ اپنے مفادات کے لیے ایک مہرہ سمجھتی۔ یہ احساس نسل در نسل منتقل ہوتا رہا اور بعد میں یہی قومی مزاحمت کے بیانیے کی بنیاد۔ اور پھر 20ویں صدی میں ایک نئی طاقت میدان میں آئی، امریکہ اور تیل۔ ایران اور عالمی سیاست ایک ایسی کہانی میں بدلنے والے تھے جس کے اثرات آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی بد اعتمادی 1979 کے ریولوشن کے بعد سے آئی تو رکیے، یہ بد اعتمادی، یہ کہانی سے پہلے شروع ہو چکی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایران دنیا کی اہم تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہو رہا تھا، لیکن اس وقت ایرانی تیل پر برطانوی مفادات کا غلبہ تھا۔ عام ایرانی سوچتے تھے تیل ہمارا، زمین ہماری، تیل ہماری زمین سے نکل رہا ہے، فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے۔ پھر 1951 میں ایران کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایرانی تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لے لیا۔ لندن اور واشنگٹن میں ہلچل مچ گئی۔ 1953 میں ایک خفیہ منصوبہ عمل میں آیا، آپریشن جیکس۔ امریکی CIA اور برطانوی MI نے ایسے اقدامات کی حمایت کی جن کے نتیجے میں مصدق کی حکومت ختم ہو گئی اور شاہ محمد رضا پہلوی دوبارہ مضبوط اقتدار میں آ گئے۔ بہت سے ایرانیوں کے نزدیک یہ صرف ایک حکومتی تبدیلی نہیں تھی، یہ ان کی قومی خود مختاری، بیرونی مداخلت کی علامت، اور یہی وجہ ہے کہ جب آج بھی ایران کے کچھ رہنما امریکہ پر عدم اعتماد ظاہر تو وہ دراصل اسی تاریخی بادشاہت کا حوالہ دے رہے ہو۔ شاہ کی واپسی کے بعد ایران میں جدیدیت تو آئی لیکن ساتھ ساتھ سیاسی سختی اور عوامی بے چینی بھی بڑھی۔ اور پھر آیا 1979۔ شاہ محمد رضا پہلوی ملک کو جدید بنانے کی کوشش کر رہے، سڑکیں، فیکٹریاں، تعلیم، سب کچھ ترقی کر رہا تھا، لیکن عوام کا ایک بڑا حصہ محسوس کرتا تھا کہ سیاسی آزادی محدود ہو رہی ہے اور مغربی اثر حد سے بڑھ چکا ہے۔ 1978 میں احتجاج شروع ہوئے،
पहले चंद शहरों में फिर पूरे मुल्क में। जनवरी 1979 में शाह ने मुल्क छोड़ दिया और कुछ हफ्तों बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जिलावतनी से तेहरान वापस आ गए। ये सिर्फ एक रहनुमा की वापसी नहीं थी, ये एक नए सियासी निजाम पैदाइश थी। ईरान में इस्लामी जमहूरिया IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कायम हुई और इसके साथ एक नई फौज वजूद में आई। आज ये सिर्फ एक फौजी इदारा नहीं बल्कि ईरान की दिफाई हिकमत अमली, मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई रसूख का एक अहम स्तून समझा जाता है। लेकिन इनकलाब के कुछ महीनों के बाद एक ऐसा वाक़या रूबरू हुआ जिसने अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात को यकसे बदल दिया। तेहरान में अमरीकी सफारतखाने पर कब्जा और दर्जनों अमरीकी एहलकारों को 444 दिन तक यरगमाल बना। इसके बाद अमेरिका ने पाबंदियों का सिलसिला शुरू किया और दोनों ममालिक के ताल्लुकात शदीद कशीदगी का शिकार हो। और सिर्फ एक साल के बाद ईरान एक ऐसी जंग में शामिल होने वाला है जो 8 साल तक चलती रही। 22 सितंबर 1980 इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम को उम्मीद थी कि इनकलाब के बाद ईरान कमजोर हो चुका है और चंद ही हफ्तों में तेहरान तक पहुंचा जा सकता, लेकिन जंग कभी मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती। ये जंग 8 साल तक लाखों जाने गई और खलीज में जहाज रानी भी मुतासिर। इसे बाद में टैंकर वॉर का नाम दिया गया। ईरान ने इस जंग से एक सख्त सबक सीखा। अगर मुस्तकबिल में किसी बड़ी ताकत से मुकाबला करना पड़ा तो सिर्फ रिवायती फौज पर इन्हिसार काफी नहीं होगा। यही सोच आगे चलकर मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और जेर जमीन तनसीबात की बुनियाद बनी। 1988 में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त अस्करी तसादुम भी हुआ, लेकिन ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस मुकम्मल जंग में तब्दील नहीं हुआ क्योंकि दोनों फरीक चाहते थे कि अगर ये आग फैले पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ जाए। सवाल ये है कि अगर पाबंदियां इतनी ही सख्त थी तो ईरान ने जदीद हथियार कैसे बनाए और इतनी सख्त मुआशी पाबंदियों के बावजूद ईरान क्यों नहीं टूटा? अक्सर लोग समझते हैं कि सख्त मुआशी पाबंदियां किसी मुल्क को चंद साल में घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं। I have decided to ask for an early meeting of the United Nations Security Council to impose international economic sanctions upon Iran. लेकिन ईरान की कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इनकलाब के बाद अमेरिका और दीगर ममालिक ने ईरान पर मुख्तलिफ औकात में सख्त पाबंदियां लगाई। बैंकारी, तेल की बरामदात, बैनुल अक़वामी तिजारत सब मुतासिर हुए। महंगाई बढ़ी, ईरानी रियाल की कदर गिरी, आम शहरियों की क़ुव्वत खरीद मुतासिर हुई। लेकिन सवाल बाकी है, ईरान ने मुख्तलिफ पाबंदियों के बावजूद नए तरीकों से अपनी मुश्किल को ढाला। दाखिली सनतें, इलाकाई तिजारत और चीन और रूस के साथ मुतबादिल तिजारती रास्ते। लेकिन याद रखिए, ये तस्वुर बिल्कुल गलत है कि कोई भी बड़ा मुल्क हर सूरत हाल में गैर मशरूत तौर पर ईरान के लिए लड़ने के लिए। बैनुल अक़वामी सियासत में मुस्तकिल दोस्त नहीं होते, मुस्तकिल मफादात होते हैं। अब वो सवाल जो सोशल मीडिया पर बहुत पूछा जाता है, कुछ लोग ईरानी रियाल क्यों खरीद कर जमा कर रहे हैं? कुछ मुस्तकबिल में कदर बढ़ने की उम्मीद पर, कुछ महज क़यासराई के तौर पर और कुछ सोशल मीडिया की अफवाहों से मुतासिर होकर। लेकिन अक्सर मुआशी माहिरीन यही कहते हैं, किसी भी करेंसी में सरमायाकारी सिर्फ उम्मीद या अफवाह पर नहीं बल्कि मुकम्मल तहकीक से करनी चाहिए। जरा सोचें, अगर ईरान के ऊपर फुल फ्लैज वॉर कल से शुरू हो जाए तो क्या इससे सिर्फ ईरानी रियाल ही मुतासिर होगा कि पूरी दुनिया? यहाँ से चलते हैं हम इस कहानी के सबसे अहम तरीन और खतरनाक मोड़। अगर मैं आप दोस्तों से ये सवाल करूं कि इस टाइम सबसे अहम तरीन समुद्री रास्ता कौन सा है, तो आप जवाब देंगे कि स्वीज कनाल। लेकिन अगर यही सवाल मैं जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज रखने वाले इंसान से पूछूं तो वो कहेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। नक्शे पर यह रास्ता छोटा सा दिखता है, लेकिन दुनिया के समुद्री खाम तेल की तिजारत का तकरीबन 5वां हिस्सा यहीं से गुजरता है। कतर की गैस बरामदात भी इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ फौजी कशीदगी बढ़े, जहाज रानी खतरनाक हो जाए, इंश्योरेंस महंगी हो जाए तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है, महंगाई फैल सकती है और दुनिया की स्टॉक मार्केटें हिल सकती हैं। यही वजह है कि लंदन, टोक्यो, बीजिंग, रियाद और इस्लामाबाद तक सब इस खित्ते पर नजर रखे हुए। लेकिन एक बात साफ कर लें, सोशल मीडिया पर यह दावा आम है कि ईरान किसी भी वक्त इस रास्ते को मुकम्मल बंद कर सकता है। हकीकत इससे पेचीदा है। ईरान कशीदगी पैदा कर सकता है, लेकिन इस रास्ते को तवील अरसे तक मुकम्मल बंद रखना इंतहाई मुश्किल और खतरनाक होगा, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका का नहीं कई दूसरे मालिक का भी मफाद। तो अगर ईरान रिवायती बहरी जंग अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता तो इसकी हिकमत अमली किस पर कायम? एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी कमजोर फरीक अपने मुखालिफ की ताकत को इसकी कमजोरी में बदलने की कोशिश करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिकी बहरिया की सबसे बड़ी ताकत की अलामत। लेकिन अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर है तो फिर हर बार ईरान के साथ जंग से हमेशा हिचकिचाता क्यों? जवाब है लॉजिस्टिक्स। गोली चलाना आसान, लेकिन हजारों फौजियों तक रोजाना खुराक, ईंधन, पानी, गोला बारूद और बाकी चीजें पहुंचाना इंतहाई मुश्किल। यही वो जंग है जिसे फौजी माहिरीन लॉजिस्टिक्स विंस वॉर्स कहते हैं।
قطر, बहरीन, कुवैत, इराक, शाम, ये सब अमरीकी फौजी मौजूदगी के मराकिज हैं। लेकिन अगर जंग लंबी हो जाए तो यही ताकत जिम्मेदारी में बदल जाए, क्योंकि हर अड्डे को मुसलसल सप्लाई चाहिए। अब दूसरी तरफ देखें, ईरान को हजारों किलोमीटर दूर से फौज नहीं लानी, वो अपने ही जोग्राफिया में लड़ेगा। इसीलिए असल मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं होगा, बर्दाश्त, सप्लाई और वक्त का होगा। क्योंकि ईरान दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं बना सकता, इसीलिए उसने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का, जिसमें वो अरबों खर्च तो नहीं कर सकता, लेकिन मुखालिफ को अरबों खर्च करने पर मजबूर करता है। गुज़श्ता कई बरसों में ईरान ने अपने ज़ेर ज़मीन फौजी तनसीबात की वीडियोस वायरल की। मिसाइल, ज़खायर, ड्रोन सहूलियत, पैगाम साफ है, अगर हमला हुआ तो हमारी जवाबी सलाहियत मुकम्मल खत्म करना आसान नहीं होगा। इस तनसीबात की असल तादाद और मकामात अवामी तौर पर मालूम नहीं, इसीलिए दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारे, सैटेलाइट माहिरीन इन्हें मुसलसल मॉनिटर करते हैं। इसे अस्करी ज़बान में कहते हैं सर्वाइवेबिलिटी, यानी पहला हमला सहने के बाद जवाब देने की सलाहियत। और फिर है ड्रोन का किरदार। ईरान ने निस्बतन कम लागत वाले ड्रोन प्रोग्राम पर बरसों सरमायाकारी की। सवाल ये है, जब अमेरिका के पास अरबों डॉलर के जदीद जंगी हथियार हैं तो एक सस्ता ड्रोन कैसे अहम बन जाता है? क्योंकि जदीद जंग सिर्फ ताकत की नहीं, लागत की भी जंग है। अगर एक सस्ता ड्रोन दुश्मन को करोड़ों डॉलर का मिसाइल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे तो ये भी एक हिकमत अमली है। लेकिन असल सवाल फिर बाकी है, अगर जंग ईरान तक महदूद ना, अगर लुबनान, यमन, इराक और शाम के मुसल्लह ग्रोह भी शामिल हो गए तो क्या ये जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है? जंगें हमेशा टैंकों से नहीं जीती जाती। 21वीं सदी ने दुनिया को एक नया लफ्ज प्रॉक्सी वार, यानी बड़ी ताकतें अपने मफादात का दिफा मकामी इत्तेहादियों के जरिए कर। ईरान ने बरसों में लुबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी तहरीक और इराक और शाम में कुछ मुसल्लह दलों के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए। यहाँ एक गलतफहमी दूर कर ले, ये सोचना कि ये सारे तेहरान के एक बटन दबाने से ऑपरेट होते हैं, तो ये हकीकत से कोसों दूर है। हर गिरोह की अपनी क़यादत, अपने मकामी मफादात, इसीलिए हर बहरान में इनका रद्द-ए-अमल एक जैसा नहीं होता। लेकिन अगर कोई बड़ा इलाकाई तसादुम हो तो खदशा यही है कि मुख्तलिफ महाज बैक वक्त मुतहरिक हो सके, यानी कि मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट्स। ईरान और इसराइल के दरमियान बरसों से कशीदगी मौजूद है। ईरान ने इसराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरोज को कई तरीकों से तबाह किया है। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि कोई भी निजाम उसको 100% नाकाबिल तस्कीर नहीं कहा जा सकता, खास तौर पर अगर बैक वक्त बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल हो। और शायद 21वीं सदी की सबसे खतरनाक जंग वो होगी जिसमें पहली गोली चलने से पहले ही कंप्यूटर हमले कर चुके होंगे। 2010 में दुनिया ने पहली बार ये देखा कि एक छोटा सा कंप्यूटर का प्रोग्राम किसी भी मुल्क के जौहरी प्रोग्राम को बर्बाद कर सकता, और उसका नाम था स्टक्सनेट। इसका ताल्लुक ईरान के नतन्स यूरेनियम अफसूदगी मरकज से जुड़ा गया। कई बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के पीछे अमेरिका और इसराइल की खुफिया सलाहियतों का किरदार माना जाता है। अगरचे मुतल्लिका हुकूमतों ने इसकी मुकम्मल सरकारी तस्दीक नहीं की। ये शायद इंसानी तारीख का सबसे पहला बड़ा साइबर हमला जिसने बगैर बमबारी, बगैर फौज के एक हसास निजाम को मुतासिर किया और इसके बाद मुस्तकबिल में ये सोचने पर मजबूर किया कि सिर्फ जमीन, समंदर, फिजा में जंग नहीं लड़ी जाती, बल्कि इसको लड़ने के और भी बहुत सारे महाज होते हैं। फिर 2020 में अमेरिका ईरान कशीदगी एक नई रुख में जाने लगी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले में ईरान के आला कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए। ईरान ने जवाब में इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे। ये उन चंद मौकों में से एक था जब दोनों ममालिक बराह रास्त अस्करी तसादुम के इतने करीब आए, लेकिन ये मुकम्मल जंग में तब्दील नहीं हुआ। सोचें, अगर अमेरिका ईरान बहुत ज्यादा खतरनाक हालत में चली जाए तो फिर दुनिया तकसीम हो जाएगी, या फिर हर मुल्क अपने मफादात के बारे में सोचे। बैनुल-अक़वामी सियासत की सबसे बड़ी हकीकत यही है, यहाँ मुस्तकिल दोस्त नहीं होते, मुस्तकिल मफादात होते हैं। अमेरिका का पहला मकसद सिर्फ हमला नहीं होगा, अपने फौजियों, अड्डों, इत्तेहादियों और आलमी तवानाई सप्लाई का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। इसराइल तवील अरसे से ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई नेटवर्क पर तशवीश का इज़हार करता है, लेकिन किसी भी मुमकिन कार्रवाई का इन्हिसार हालात पर होगा। चीन की अवलिन तरजीह अपनी मुईशत और तवानाई सप्लाई है। ज्यादातर तजिया निगार यही समझते हैं कि चीन बराह रास्त जंग में शामिल होने की बजाय सफारती कोशिशों पर तवज्जो देगा। रूस और ईरान के दरमियान ताउन मौजूद है, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि रूस हर सूरत में अमेरिका से बराह रास्त जंग करेगा। अरब ममालिक के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सियासत नहीं, तेल, गैस और अपने शहरियों की सलामती होगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी माजी में भी रही है और अब भी यही है कि इलाकाई कशीदगी में सफारती हल करो। ऐसी किसी जंग में पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चैलेंज अपनी मुईशत, तवानाई और इलाकाई इस्तेहकाम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा जिसके पास हर जंग रोकने की ताकत नहीं, लेकिन जंग बंदी और सफारती मुज़ाकरात में इसका किरदार अहम रहता है। अब असल सवाल शुरू होता है, अगर कल ही जंग छिड़ जाए
तो उसका पहला दिन कैसा हो। रुकें, यहाँ हम कोई पेशन गोई नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक मुमकिन मंजरनामा है, जैसा कि अस्करी और मुआशी माहिरीन तज्जिया करते हैं। घंटा 1 दुनिया सो रही है, लेकिन वाशिंगटन, तेहरान और खलीज के कमांडर सेंटर्स में रोशनी चल चुकी है, हंगामी इजलास बुलाए जाते हैं। घंटा 3 सोशल मीडिया पर हजारों वीडियोस गर्दिश करती हैं। कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी अफवाह, ये तय करना मुश्किल हो जाता है। जदीद जंग सिर्फ मैदान में नहीं, इत्तलात के मैदान में भी लड़ी जाती है। घंटा 6 आलमी मंडी रद्द अमल देती है। तेल, शिपिंग, इंश्योरेंस की कीमतें हिल जाती हैं, कुछ जहाज अपने रास्ते बदल लेते हैं। एक ही सवाल हर जगह पूछता है, क्या ये महदूद कार्रवाई है या ये तवील जंग का आगाज है। घंटा 18 अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाया जा सकता है, खुफिया सफारती राब्ते शुरू होते हैं। घंटा 24 दुनिया एक सवाल में तकसीम हो चुकी होती है, क्या बहरान यही रुक जाएगा या अभी असल जंग शुरू होना बाकी है। पहले 24 घंटे अक्सर जंग का फैसला नहीं करते, लेकिन ये जरूर तय करते हैं कि दुनिया किस समझ जाने वाली है। दुनिया में कुछ जंगें 7 दिन में खत्म हो गई और कुछ जंगें 7 दिन के बाद ही शुरू। अगर कशीदगी एक हफ्ता बरकरार रही तो दुनिया की तवज्जो सिर्फ मैदान जंग पर नहीं, हर इंसान की जेब पर हो, क्योंकि जदीद जंगों में सिर्फ फौजी नहीं लड़ते, पूरी मुईशत लड़ती है। तेल, शिपिंग लागत और इंश्योरेंस पर शदीद दबाव आ सकता है। आपकी गाड़ी, हवाई सफर, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक इलाकाई बहरान भी आलमी सप्लाई चेन हिला सकता है। अगर जनूबी लुबनान, बहरा अहमर, इराक और शाम जैसे कई महाज बैक वक्त सरगर्म हो जाएं, तो फैसला साजी मजीद मुश्किल हो जाती है। लेकिन साथ साथ पस पर्दा सफारती कोशिशें भी तेज तर हो जाती है, क्योंकि हर बड़ा मुल्क ये जानता है कि अगर बहरान काबू से बाहर निकल गया तो इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। और शायद जंग की सबसे बड़ी कीमत वो लोग चुकाते हैं जो जंग शुरू ही नहीं करते। एक खानदान जो सिर्फ सुकून से जिंदगी गुजारना चाहता है, एक ड्राइवर जिसे महंगा ईंधन खरीदना पड़ता है, एक मजदूर जिसकी नौकरी आलमी मंडी के उतार चढ़ाव से मुतासर हो जाती है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे हसास और खतरनाक तरीन मौजू की तरफ। पहले साफ बात, ये बाब कोई पेशन गोई नहीं, ये किसी मुल्क पर इल्जाम भी नहीं, ये सिर्फ एक सवालात हैं जो दुनिया भर के दिफाई माहिरीन और तारीख दान उठाए हुए हैं। जब भी कोई उलझी हुई जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ के करीब पहुंचती है, सोचें जब कोई ताकतवर मुल्क एक ऐसी जंग में फंस जाए जिससे निकलना सियासी तौर पर नामुमकिन हो, जितना आसान ना रहे, तो वो कहां तक जा सकता है। वियतनाम में अमेरिका कई साल ऐसी जंग में उलझा रहा, अफगानिस्तान में भी यही हुआ, लेकिन ईरान के पास एक इजाफी पहलू है, इसके जेर जमीन जोहरी और मिसाइल तनसीबात। हकीकत ये है कि 2025 में अमेरिका और इसराइल ने ईरान की जोहरी तनसीबात पर एक महदूद मगर शदीद फिजाई मुहिम चलाई। नतन्स, फिरदो और इस्फहान जैसे मराकज निशाना पड़े और ये सिलसिला 2026 में भी वक्फे से जारी रहा। लेकिन बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी आज तक ये तस्दीक नहीं कर सकी कि इन हमलों के बाद ईरान का अफसूदा यूरेनियम कहाँ है और तनसीबात की असल हालत क्या है। यानी रिवायती बमबारी भी ये मसला हल नहीं कर पाई। तो सवाल ये है कि अगर मुस्तकबिल में कभी हालात इस नहज पर पहुंचे कि जेर जमीन तनसीबात को रिवायती हथियारों से नाकारा बनाना मुमकिन नजर न आए, तो अमेरिका के अंदर ये एहसास पैदा हो कि वो एक ऐसी जंग में फंस चुका है जहां न जीत मुमकिन है न वापसी, तो क्या जोहरी ऑप्शन मेज पर आ सकता है। ज्यादातर माहिरीन इसे इंतहाई कम और आखिरी हद तक नापसंदीदा इम्कान कहते हैं, मगर मुकम्मल नामुमकिन की करार नहीं देते। और अगर ऐसा हो तो नताइज सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे। पहली हकीकत, जोहरी धमाके का असर सिर्फ उसी जगह महदूद नहीं रहता। ताबकार मवाद फिजा में बुलंदी पर जाता है और हवाओं के रुख के मुताबिक सैकड़ों से हजारों किलोमीटर दूर तक फैल सकता है। मशरिक वस्ता में अमूमी हवाई रुख अक्सर मगरब से मशरिक की तरफ होता है, यानी अगर ईरान के मरकजी या मशरकी हिस्से में ऐसा कोई वाक़या पेश आए तो ताबकार ज़र्रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब बढ़ने का इम्कान माहिरीन के नजदीक एक संजीदा तशवीश है। पाकिस्तान के लिए जो खुद एक जोहरी ताकत और ईरान का करीबी पड़ोसी है, ये कोई दूर की बात नहीं रहेगी। बलूचिस्तान का सरहदी इलाका ताबकार असरात और मुहाजिरीन के रेले और सलामती के खदशात का सामना कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क होने के नाते अवामी जज्बात की शदीद लहर भी उठेगी और खित्ते के जोहरी पॉलिसियों पर नए सवालात जन्म देगी, क्योंकि अगर एक बार ये हद अबूर हो गई तो खदशा यही रहेगा कि मुस्तकबिल में भी ये ऑप्शन दोबारा जेर गौर आ सकता है। अफगानिस्तान पहले से दहाइयों की जंग से मुतासिर है, ऐसा कोई वाकया इसे एक और इंसानी बहरान की तरफ धकेल सकता है। इसराइल के लिए यह मंजरनामा ताबकारी से ज्यादा इलाकाई तसादुम की शिद्दत के एतबार से अहम होगा। ईरान से मुंसलिक नेटवर्क्स की जानिब से रद्द अमल का इम्कान बढ़ सकता है, जिससे इसके मिसाइल दिफाई निजाम गैर मामूली दबाव में आ सकता है और अमेरिका के करीबी इत्तेहादी होने के नाते इसराइल को आलमी सफारती दबाव का भी सामना हो सकता है। और दुनिया 1945 के बाद से किसी जंग में दोबारा जोहरी हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर ऐसा दोबारा हो तो सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं, इंसानी तारीख का एक नया और इंतहाई खतरनाक मोड़ होगा। जोहरी अदम फैलाव के आलमी मुआहदे की साख सवालिया निशान बन जाएगी और बहुत से तज्जियाकार खबरदार करते हैं कि दुनिया के कई ममालिक अपनी सलामती के लिए खुद अपने जोहरी प्रोग्राम तेज करने पर गौर कर सकते हैं। आलमी मंडियां शदीद बहरान का शिकार हो सकती है।
तेल की कीमतें गैर मामूली सतह पर जा सकती हैं। अब नहर हॉर्मुज़ से गुजरने वाली बहरी तिजारत मुकम्मल रुक सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास बुलाया जाएगा और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो सकते हैं। और शायद सबसे अहम बात, अमेरिका खुद भी इस फैसले की कीमत तवील अरसे तक चुकाता रहेगा, अपनी आलमी साख, अपने इत्तेहादियों का एतमाद और अपनी सफारती ताकत की सूरत में। क्योंकि जब कोई ताकत ना समझने लगे कि वो ना जीत सकती है ना पिछड़ सकती है, तो तारीख ने बारहा दिखाया है कि ऐसे हालात में फैसले हमेशा अकल से नहीं, दबाव और मजबूरी पे होते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के सफारतकार और अमन के इदारे ऐसी किसी भी जंग को इस नहज तक पहुंचने से पहले ही रोकने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि एक बार जोहरी दहलीज अबूर हो गई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने तारीख देखी, ज्योग्राफी देखा, इनकलाब, तेल, मिसाइल, ड्रोन, साइबर वॉर, प्रॉक्सी, नेटवर्क्स और आलमी सियासत का वो चेहरा देखा जो रोजाना खबरों में मुकम्मल नजर नहीं आता। अब सिर्फ एक ही सवाल बात है, अमेरिका और ईरान की जंग सालों तक लंबी हो गई, तो इसको जीतेगा कौन? अगर सवाल सिर्फ अस्करी कुव्वत का हो तो अमेरिका आज भी दुनिया की ताकतवर तरीन फौजी कुव्वतों में शुमार होता है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि क्या सिर्फ फौजी ताकत ही जंग जीतवा सकती है, तो तारीख का जवाब है नहीं। वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक हमें याद दिलाते हैं कि जंग के बाद अमन कायम रहना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल मरहला होता है। और अगर सवाल ईरान का हो तो इसके पास भी ऐसी ताकत नहीं है अमेरिका को अस्करी तौर पर शिकस्त दे सके, लेकिन इसने ऐसी हिकमत अमली जरूर बनाई जिसका मकसद किसी भी हमले की कीमत बहुत बढ़ा देना है, और इसे डेटरेंस स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर करना कि हमला ना करने से ज्यादा महंगा साबित होगा। और अगर ये जंग लंबी होती तो इसमें फौजी नहीं, मईशत जख्मी हो। तेल, तिजारत, सप्लाई चेन, महंगाई और दुनिया भर के आम लोग इसकी कीमत चुकाएंगे। क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग बन सकती है? इसका कोई यकीनी जवाब किसी के पास नहीं। मगर आलमी माहिरीन कहते हैं कि बड़ी कुव्वतें हमेशा इस तरह की खतरनाक जंगों से बचने के लिए मुकम्मल कोशिश करती हैं, क्योंकि इसकी कीमत सबके लिए तबाहकुन हो सकती है। लेकिन ये भी हकीकत है, गलत अंदाजे और बढ़ती कशीदगी किसी भी बहरान को ज्यादा खतरनाक बना सकती है। शायद ताकतवर वो नहीं जो जंग शुरू करे, ताकतवर वो है जिसको रोक दे। शायद फातेह वो नहीं जो सबसे ज्यादा बम जाए, फातेह वो है जिसकी आने वाली नस्लें और अमन और कामयाब जिंदगी जिए। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि तारीख हमें हथियार बनाना सिखाती है और अक्ल हमें उन्हें इस्तेमाल करने से रोकना सिखाती है। जंग के नक्शे बदल देती है और इनकी सबसे बड़ी कीमत इंसान ही अदा करता है। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती लगी तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।